Good morning. In the previous class, we learnt about cluster analysis, how we can use Euclidean distance, Jaccard coefficient, and k-means distance for getting the clusters and dividing the data sets into different clusters. In today's class, we'll study unit number 4, that is your association rule mining. In association rule mining, we will try to find out certain relationships from one feature set to the another feature set, from one data item to another data item. There might be certain rule, or there might be certain relationship, or there might be certain pattern into it, right? So let us see what is association rule mining. Association rule mining is basically your data mining technique wherein we try to identify relationships, patterns as well as associations within large data sets. We use it basically for market basket analysis. How in a retail store, or how in an e-commerce website, or how in a market, we will try to put the items or the products or the shops together so as to maximize its sales. So basically, association rule mining is a rule-based algorithm that finds relationships between different database variables. What is the rule? Rule is of the form of x tends to y, or x derives y, where this is x is your left hand side or antecedent and y is the right hand side or consequent. For example, whenever we go on a milk booth, or whenever we go to a shop, what we do? We buy milk. Milk के साथ we buy bread, we buy butter, we buy biscuit. At times we may buy tea leaves, sugar. So what happens? These things are put together. ठीक है? Similarly, in a big grocery store, rice column is different, spices section is different. वहाँ पे सारे spices रखे होंगे. ठीक है? Then we have bathroom items, soap, detergent, face wash, body wash, moisturizers, ये सारी चीज़ें एक सेक्शन में रखी होंगी, including the shampoo, hair shampoo, right? Similarly, आप जब ब्रेकफास्ट रिलेटेड आइटम्स हैं, सीरियल्स हैं, सारे के सारे सीरियल्स एक सेक्शन में होगा. ऐसा नहीं होगा कि सीरियल्स जो है मिल्क आइटम्स के साथ रखे हुए हैं. सेम थिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट्स का सेक्शन अलग होगा, बिस्किट्स का सेक्शन अलग होगा. व्हाई इट हैज़ बीन डन? बिकॉज दिस इज द टेंडेंसी, these are the certain relations, these are the certain patterns which has been found कि if someone does X, he or she is likely to do Y. Same thing, if I am buying a mobile phone, what other things I will buy? I will buy a cover, I will buy a screen guard, I will buy a protection plan, ठीक है? I will buy an extended warranty, right? Similarly, if I am going to purchase a washing machine, what items I will be buying? If it is a fully automatic washing machine, I will buy a stand for the washing machine, नीचे का stand, washing machine का cover, उसके साथ extended warranty, ठीक है? और उसके साथ क्या बाय करेंगे? डिटर्जेंट, ठीक है? टॉप लोड है तो टॉप लोड के हिसाब से टॉप लोड वाला डिटर्जेंट, अगर फ्रंट लोड है तो फ्रंट लोड का डिटर्जेंट. वी ट्राई टू बाई ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? देन देयर इज अ डी स्केलर इन द डिटर्जेंट. तो ये सारे के सारे आइटम्स एक ही जगह पे आपको रखे होते हैं. ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होगा? ये आपके रिकमेंडेशंस आएंगे. इफ़ यू आर बाइंग सर्टेन प्रोडक्ट, इट विल रिकमेंड यू, वुड यू लाइक टू बाई दिस ऑल्सो. सॉफ्टवेयर रिपोजिटरीज, आप जब गिटहब से कोई भी रिपोजिटरी डाउनलोड करते हो, ठीक है? अब आपने पाइथन डाउनलोड किया, पाइथन इंस्टॉल किया, पाइथन के साथ आप क्या इंस्टॉल करोगे? नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पांडाज, ठीक है? ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है. इफ यू आर डाउनलोडिंग पाइथन, you are definitely going to download a numpy library.
If you have downloaded NumPy library, you are definitely going to download the Python. ठीक है. Now where it is used, association rule mining is used in supermarket. Web mining is बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट से जो रिलेटेड होती है उस पर हम एक साथ ही उसको कर देते हैं. जैसे किसी एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, तो वहाँ पे स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ कहाँ लगी होंगी? स्टूडेंट सेक्शन में. ठीक है, वहाँ पे आपके हॉस्टल फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपकी उसके साथ लग जाएंगी. और कैसे होता है वेबसाइट पे? एक आपकी जॉब पोर्टल है. जॉब पोर्टल पे जितनी भी जॉब्स हैं वो कैटेगरीज वाइज सेक्शन होंगी. ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड एक अलग उसका कैटेगरी होगा, उसी के ही कॉरेस्पॉन्डिंग उससे रिलेटेड जॉब्स लगी होंगी. दैट इज इन योर वेब माइनिंग. नेक्स्ट इज इन मेडिकल एनालिसिस. इफ समबडी हैज बीन डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, ठीक है, तो उससे एसोसिएटेड और क्या क्या डिजीजेज होंगे? व्हाट वुड बी द अदर सिम्टम्स? If somebody has been diagnosed with the some heart disease, ठीक है, coronary block और some vein block, उससे associated और क्या क्या symptoms होंगे और क्या क्या associated diseases होंगे. ठीक है. Network analysis is basically your cyber attacks, DOS attacks, injection attacks, कि किसी भी वेब एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे किस तरीके के अटैक्स हो सकते हैं. एंड देन योर प्रोग्राम पैटर्न फाइंडिंग. इफ़ यू आर सपोज आप पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने इनपुट फंक्शन को यूज़ किया है, देन यू आर लाइकली टू यूज़ प्रिंट फंक्शन. लेकिन अगर आप C++ की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, यू हैव यूज्ड सी इन फंक्शन, देन यू आर गोइंग टू यूज़ सी आउट. ठीक है, एक पैटर्न बन गया. इस पैटर्न से आपको पता चल गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है. जावा में आप क्या यूज़ कर रहे हो? इनपुट स्कैनर. ठीक है, scanner.in यूज़ कर रहे हो. उसके साथ आप आउटपुट लाइन क्या यूज़ कर रहे हो? system.out.println. ठीक है, इस तरह से you have find out the certain patterns or certain relationships. They exist. You have bought a table. तो उस टेबल के साथ what you are going to buy? You are going to buy chair. You are not going to buy milk. आप फर्नीचर की शॉप पे जा रहे हो, टेबल परचेज करने जा रहे हो, तो उसके साथ मिल्क नहीं, ब्रेड एंड बटर नहीं लोगे. आप उसके साथ चेयर लोगे, चेयर के साथ कुशन लोगे, कुशन कवर लोगे, टेबल क्लॉथ लोगे. ये सारी चीज़ें आपको फर्नीचर वाली शॉप्स पे मिलेंगी. और इसी के ही साथ रिलेटेड आइटम्स जो हैं वो आपको उसी के ही आसपास की शॉप्स पे मिलेंगी. आप कभी भी मार्केट में जाओगे, इवन इफ यू गो टू दी ओल्डेस्ट मार्केट, आपको ये सारी चीज़ें एक ही तरफ मिलेंगी. ठीक है, साड़ी की शॉप है तो उसी के ही पास मैचिंग पीको, फॉल, ब्लाउज एक्सेट्रा वो सब कुछ मिलेगा. आप शर्ट पैंट की शॉप पे जा रहे हो तो वहीं उसके आसपास आपको टेलरिंग शॉप भी मिल जाएगी. दैट विल प्रोवाइड यू दी टेलरिंग सर्विस और दी स्टिचिंग सर्विसेज फॉर द ट्राउजर्स, पैंट्स एंड कोट. You will find another shop nearby which will give you belt as well as tie, belt, socks, tie pin, ठीक है, cuff links. ये सारी की सारी चीज़ें आपको nearby shops पे मिलेंगी. So what it is basically analyzing certain associations. If there is a data item, if there is a data variable x, then there will be another item y. एक और example, science. अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स लिया है 11th क्लास में, तो उसके साथ केमिस्ट्री लेगा ही लेगा. फिजिक्स और केमिस्ट्री. फिजिक्स लिया है तो साथ में मैथ्स भी लेगा ही लेगा. ठीक है, बायो ले या ना ले, इट इज़ एन ऑप्शनल, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तीनों साथ में होंगे ही होंगे. राइट. नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन डेटा सेट. ट्रांजैक्शन डेटा सेट इज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स. It is basically a record which represent a transaction. It is basically a collection of data records, right? And it is maintained in a tabular format. Let us see what is a transaction. This is a transaction data set. यहाँ पे
This is in transaction ID. Transaction ID 1, transaction ID 2, 3, 4 and 5. Now what is the record? Record क्या है? A person has downloaded Python. A person has also downloaded the NumPy. Person has downloaded Java. ठीक है, जावा डाउनलोड किया गिटहब रिपोजिटरी से या सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी से, लेकिन उसके साथ में बाकी और कोई भी लाइब्रेरीज डाउनलोड नहीं की, ना नमपाई किया, ना पाइथन किया, ना मैटप्लॉटलिब किया, ना पांडास किया, सिर्फ जावा डाउनलोड किया। इस आईडी में पाइथन भी डाउनलोड किया, नमपाई भी किया, मैटप्लॉटलिब भी और पांडास भी, लेकिन जावा डाउनलोड नहीं किया। सो व्हाट इट इज अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन डेटा सेट। हर ट्रांजैक्शन डेटा सेट में एक ट्रांजैक्शन आईडी है और उसमें एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। What are the data items that are existing? ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं? नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट आइटम सेट। फ्रीक्वेंट आइटम सेट इज द सेट ऑफ आइटम्स दैट अपीयर टुगेदर। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या हो जाएगा? पाइथन के साथ नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ठीक है। जब हम एसोसिएशन रूल माइनिंग करेंगे स्टार्ट, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? इज टू आइडेंटिफाई द फ्रीक्वेंट आइटम सेट। फॉर एग्जांपल पाइथन एंड नमपाई दे अपीयर टुगेदर इन द डाउनलोड हिस्ट्री ऑफ अ सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी। सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी से कुछ भी अगर पाइथन डाउनलोड हो रहा है तो पाइथन के साथ नमपाई लाइब्रेरी भी डाउनलोड हो रही है। सिमिलरली मिल्क एंड ब्रेड दे आर अपीयरिंग इन टुगेदर, राइट। अच्छा, मिल्क एंड ब्रेड भी आप देखो, व्हाट इज अनदर एसोसिएशन? इट इज बीइंग ब्रॉट ओनली ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स, मैक्सिमम ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स। दोपहर में कोई नहीं दूध लेने जा रहा, शाम को बहुत कम है, शाम को लेकिन बहुत कम है, मैक्सिमम इज इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में ही आप कभी भी देख लोगे मिल्क एंड ब्रेड की जो शॉप है अर्ली मॉर्निंग खुल जाएगी और कोई दुकान खुले ना खुले, ठीक है। बाकी दुकानें 11 बजे खुलेंगी। सो लेट अस सी व्हाट इज द फ्रीक्वेंट आइटम सेट। हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स है मिल्क, ब्रेड एंड बटर। अब इसके साथ इसके आइटम सेट्स क्या क्या होंगे? वन कस्टमर विल गो एंड बाय ओनली मिल्क, अनदर कस्टमर विल गो एंड बाय ओनली ब्रेड, another customer will go and buy only butter। एक कस्टमर है जो मिल्क एंड ब्रेड दोनों साथ में बाय कर रहा है, दूसरा कस्टमर है जो मिल्क एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, किसी एक कस्टमर ने तीनों चीजें। सो व्हाट इट इज, आप देखो यहाँ पे अगर 3 आइटम्स हैं, देयर आर हाउ मेनी आइटम्स? 3। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम्स है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 2 to the power 3 minus 1. Why minus 1? Minus 1 is blank. This one is blank. कुछ भी नहीं खरीदा, ठीक है। So it is 8 minus 1 7. Total 7 combinations है। इसमें आ जाओ पाइथन एंड नमपाई के केस में, there are 2 item sets, 2 data items हैं, तो इसके कितने combinations बनेंगे? 2 to the power 2 4। 4 में से एक ब्लैंक, नल माइनस करो 3। कौन कौन सा बना? एक पाइथन नमपाई, नमपाई अलोन, और इन दोनों का पाइथन एंड नमपाई। दिस ब्लैंक वन, ये जो ब्लैंक है ये हमने ओमिट कर दिया है, ठीक है। नल डेटा सेट हमने माइनस कर दिया। नल सेट इज नॉट काउंटेड, देयरफॉर इट हैज बीन सब्ट्रैक्टेड। जो एक -1 है इसी वजह से है। सो इफ अ क्वेश्चन कम्स और इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, जहाँ पे 5 हैं, एक शॉप में 5 प्रोडक्ट्स रखे हैं, तो कितने आइटम सेट्स हो जाएंगे? 2 to the power 5 10 minus blank 1, टोटल 2 to the power 5 32, 32 minus 1 31, टोटल कितने फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स हो जाएंगे? 31। कितने कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे? 31। If I say in a shop there are 10 products, so how many are frequent item sets?
2 पावर 10 माइनस 1, 1024 माइनस 1 1023, ठीक है। एक और एग्जांपल, आपके पास 4 आइटम्स हैं ए बी एंड सी डी, ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशंस बनाओ, दो दो के कॉम्बिनेशंस बनाओ, ए बी, ए सी, ए डी, उसके बाद बी और सी का कॉम्बिनेशन, फिर बी और डी, और फिर सी और डी। अब 3 के कॉम्बिनेशंस बनाओ, ए बी एंड सी, ए बी एंड डी, ए सी एंड डी, एंड बी सी एंड डी, और फिर चारों आइटम्स का कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। ये क्या हो रहे हैं आपके फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारे कॉम्बिनेशंस इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपके डेटा सेट में डेटा आइटम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स इतने कॉम्बिनेशंस इंक्रीज होते जाएंगे। सो व्हाट वी विल डू, लेट अस सी। नेक्स्ट एक मेट्रिक है आपका सपोर्ट इज अ मेट्रिक। जब हम एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो वहां पे एक मेट्रिक आएगा सपोर्ट। हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। So let us see what are the different steps for generating rule. Rule generation, there are 3 steps. First is to identify the frequent item sets. Frequent item sets हमको find out करने। आप देखो यहाँ पे हमारे पास 4 आइटम्स थे, तो चारों आइटम्स के 2 to the power 8 minus 2 to the power 4 minus 1, 15 frequent item sets लिए, ठीक है। We have collected all the frequent item sets. After this we will generate all the possible rules. What are the different rules? Third step is to calculate the confidence. The formula for confidence is support over support of x union y, जहाँ पे आप दो रूल्स ले रहे हो, ठीक है। आप रूल ले रहे हो पाइथन एंड नमपाई। तो इसका जो सपोर्ट होगा, सपोर्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सपोर्ट। पाइथन कितने ट्रांजैक्शंस में आया, नमपाई कितने ट्रांजैक्शंस में आया, और टोटल कितने ट्रांजैक्शंस हुए, ठीक है। फिर जब आप इसकी कॉन्फिडेंस निकालोगे, कॉन्फिडेंस के केस में आप इन दोनों के टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस निकालोगे और फिर तो सपोर्ट से डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट इज योर लिफ्ट। लिफ्ट इज सपोर्ट ऑफ x यूनियन y, सपोर्ट ऑफ x मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सी द डिफरेंस, यहाँ पे यूनियन हो रहा है, ठीक है। दोनों आइटम्स को यूनियन करके हम सपोर्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग सपोर्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं सपोर्ट की, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे हमारे आइटम सेट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखो जैसे जैसे हमारे डेटा आइटम्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे आइटम सेट्स भी बढ़ रहे हैं। 2 to the power 10 प्रोडक्ट्स के लिए 2 to the power 10 आइटम सेट्स हो गए। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, देयर इज ए प्रिंसिपल, ए प्रायोरी प्रिंसिपल, इट सेज दैट कि अगर आपका कोई भी आइटम सेट फ्रीक्वेंट है तो उसके सबसेट भी फ्रीक्वेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें आइटम्स हैं सी डी एंड ई, ठीक है, तो उसके सबसेट्स कौन कौन से बन गए, सी कॉमा डी कॉमा ई, सी डी डी ई
CE, ये सारे के सारे भी फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, तो हम इनको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसका सुपरसेट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं पाइथन, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और पांडास, ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंट आइटम सेट है, तो इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, पाइथन, नमपाई, फिर इन सबके कॉम्बिनेशंस, तो हमने एक सुपर सेट काउंट कर लिया, इसको फ्रीक्वेंट आइटम सेट मान लिया, इसके जो सबसेट है उसको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि जब ये इतना फ्रीक्वेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा बारी डाउनलोड हो रहा है, तो इसके जो सबसेट्स है वो भी डाउनलोड होंगे। Now what is the a priori algorithm? A priori algorithm it says, सबसे पहले आप एक वेरिएबल ले लो k, उसको इनिशियलाइज कर दो 1 से, ठीक है। जनरेट द फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स ऑफ लेंथ 1, एक एक के कॉम्बिनेशंस। हमने क्या किया था, हमारे पास 4 आइटम्स थे, तो हमने सबका एक एक के फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स बनाए, सिंगल सिंगल, ठीक है। फिर उसके बाद जनरेट लेंथ k प्लस 1, दो दो के कॉम्बिनेशंस, ए बी, बी सी, सी डी, बी डी, ए डी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई आइटम सेट ऐसा है जो ऑलरेडी किसी का सबसेट है, तो आप उसको प्रून कर दो, प्रून मतलब रिमूव कर दो, सबसेट को हटा दो। प्रिंसिपल क्या कह रहा है, सबसेट को इंक्लूड मत करो। उसके बाद काउंट दी सपोर्ट, व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, सपोर्ट, एलिमिनेट विच आर इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट मतलब कुछ वैल्यूज ऐसे होंगे, कुछ आइटम सेट्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यूज एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फ्रीक्वेंट आइटम सेट की वैल्यू ले ली 0.5, ठीक है, तो जो जो आइटम सेट्स ऐसे हैं जो 50% से कम उनकी सेल्स हो रही है, या 50% से कम उनकी ट्रांजैक्शंस हैं, या 50% से कम डाउनलोड हो रही है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको एसोसिएशन बनाना है ना भाई। कोई एक इक्का दुक्का आइटम हो गया ऐसा कि मैं फर्नीचर लेने गई और मैंने साथ के साथ मिल्क एंड ब्रेड भी ले लिया, इट इज़ वेरी इनफ्रीक्वेंट, ठीक है। आउट ऑफ दी 200 customers there are only 20 customers, so we will not consider it as a association. If someone is buying furniture, तो मैं फर्नीचर के साथ मिल्क एंड ब्रेड को एसोसिएट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज आउट ऑफ 220 कस्टमर्स हैव डन इट। मैं फर्नीचर में किसको एसोसिएट कर रही हूँ, फर्नीचर के मटेरियल को, फर्नीचर कुशन हो गया, टेबल क्लॉथ हो गया, मैं उसको एसोसिएट कर रही हूँ बिकॉज आउट ऑफ 200 170 कस्टमर्स हैव बॉट इट टुगेदर। टेबल लिया, टेबल के साथ टेबल क्लॉथ लिया है, कुशन लिया है, चेयर के लिए कुशन कवर लिया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ली हैं। टेबल मैट्स लिए हैं, ठीक है, इफ़ इट इज़ अ डाइनिंग टेबल तो इसके साथ टेबल मैट्स लिए हैं। नाउ लेट अस सी एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करते हैं हम। हमारे पास ये ट्रांजैक्शन डेटा सेट है, एक I have records of 6 डाउनलोड्स, एक डाउनलोड में पाइथन, नमपाई, पांडास आया, एक में ये दोनों लाइब्रेरीज डाउनलोड हुई, ये और ये, दिस इज अ ट्रांजैक्शन डेटा सेट। अब सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, आई एम फाइंडिंग आउट दी सपोर्ट, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम फाइंडिंग आउट दी सपोर्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल आइटम्स। सपोर्ट कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो, सपोर्ट का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक्स आइटम का और टोटल ट्रांजैक्शंस।
यहाँ पे मेरे को पहले पाइथन का सपोर्ट निकालना है, सपोर्ट ऑफ पाइथन। पाइथन कितने ट्रांजैक्शंस में आया है, काउंट करो, 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ पाइथन इज 5, टोटल कितनी है 6, ठीक है, इट इज 5/6। सिमिलरली सपोर्ट वैल्यू फॉर numpy, numpy के लिए कितनी हो गई, काउंट करो numpy कितने में आया है, 1 2 3 4, 4/6। दूसरा है सपोर्ट ऑफ मैटप्लॉटलिब, फोर, सपोर्ट ऑफ पांडाज, 1 2 3, 3/6, ठीक है। तो ये हमारे पास हर एक आइटम का सपोर्ट वैल्यू हो गया, ठीक है। यही किया था पाइथन 5/6, 0.83, numpy 4/6। अब हमने मिनिमम थ्रेशोल्ड ले ली 0.5, ठीक है, सारी की सारी वैल्यू 0.5 से अबव है। अगर कोई ऐसी वैल्यू होती जो 0.5 से नीचे होती, फॉर एग्जांपल इस वाले डेटा सेट में मैं अगर यहाँ पे जावा भी डाल दूँ तो जावा की सपोर्ट क्या हो जाएगी, 1/6, 0.11, ठीक है। जावा की सपोर्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6, इट इज लेस देन 0.5, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगी, आई विल नॉट कंसिडर इट, ठीक है। चलिए आगे। सो पहला स्टेप क्या था, फाइंड आउट द सपोर्ट ऑफ ऑल आइटम्स which are there in a transaction data set. The first step is to calculate the support of individual items. Next is to generate candidate keys of size 2. अभी हमने सिंगल सिंगल का किया, k = 1, अब क्या करेंगे, k = 2, दो दो के कॉम्बिनेशंस में, पाइथन एंड numpy। यहाँ पे देखो दो दो के कॉम्बिनेशंस देखो, पाइथन एंड numpy, पाइथन और numpy दोनों किस किस में आए हैं, दोनों एक साथ कहाँ आए हैं, 1 2 3, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, आउट ऑफ 6। फिर पाइथन एंड मैटप्लॉटलिब, ये कहाँ आया है, 1 2 3। फिर पाइथन एंड पांडास, ये कहाँ आया है, 1 2 3। मैटप्लॉटलिब एंड पांडास, 1 2, 2/6, 1/3, 0.33, ठीक है। और कौन सा है, numpy एंड मैटप्लॉटलिब, numpy एंड मैटप्लॉटलिब, ये कहाँ पे आया है, 1 2 2, 2/6, 0.33, ठीक है। इस तरह से आपने अब दो दो के कॉम्बिनेशंस में सपोर्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। राइट, अब इसमें देखो जहां जहां पे वैल्यूज लेस देन 0.5 थी, हमने क्या लिया अपना थ्रेशोल्ड, 0.5। 0.5 से कम, एक तो इसको काटो, numpy मैटप्लॉटलिब, numpy पांडास और ठीक है। हमारे पास अब कौन से रह गए, ये वाले 3 रह गए, ठीक है।
ये तीनों बिकॉज इट्स वैल्यू इज लेस देन अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू ले ली 0.5। अब उससे नीचे के हमने कॉम्बिनेशंस डिलीट कर दिए, प्रून कर दिए, रिमूव कर दिए। अब 3 के कॉम्बिनेशंस निकालो। जस्ट अ सेकेंड। तीन के कॉम्बिनेशंस में, ठीक है, यहाँ पे 3 के कॉम्बिनेशंस में आप देखोगे किसी का भी 0.5 से ग्रेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। हम 3 के कॉम्बिनेशंस का कोई रूल बनाएंगे ही नहीं। हम रूल कहाँ तक का बनाएंगे, 2 के कॉम्बिनेशंस तक का। वो वाले आइटम सेट्स लेंगे जिसमें सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। अब एसोसिएशन रूल देखो कैसे बनाएंगे। कौन कौन से एसोसिएशन रूल्स बने हमारे पास, पाइथन, नमपाई, कौन कौन सा है, एक है पाइथन और नमपाई, पाइथन और मैटप्लॉटलिब, और पाइथन और पांडास। इनकी वैल्यू 0.5 थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है। सो व्हाट आर दी पाइथन एंड नमपाई, ठीक है। अब इसका हमने क्या फाइंड आउट किया, कॉन्फिडेंस। व्हाट वी हैव फाइंड आउट हियर, वी हैव कैलकुलेटेड द कॉन्फिडेंस हियर। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर कॉन्फिडेंस, सपोर्ट। कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला क्या था, देखो ये फॉर्मूला था कॉन्फिडेंस का, सपोर्ट ऑफ यूनियन ऑफ टू, सपोर्ट ऑफ x यूनियन y, सपोर्ट ऑफ x। तो पाइथन और नमपाई का ऑल टुगेदर इसमें कितनी है, दोनों एक साथ 3 आई थी, और पाइथन कितनी बार ये आया था, 5, ठीक है। पाइथन की सपोर्ट आई 5, सो इट इज 0.6। ये कैसे आया, ये 3/5। आप इट इज लाइक पाइथन एंड नमपाई को आप एक साथ कैलकुलेट करो। पाइथन एंड नमपाई इट वाज 3/6, ठीक है, और खाली पाइथन का क्या था, 5/6। सो ये कैसे आया, दिस इज 3/6 अपॉन 5/6, तो 6 कैंसल, 3/5, इट केम आउट टू बी 0.6। फिर खाली नमपाई की देखो, पाइथन एंड नमपाई अगेन 3/5 डिवाइडेड बाय नमपाई। नमपाई कितनी बार आया था वहां पे, चेक करो, गो बैक, numpy was 4/6. What was the support of numpy? 4/6. यहाँ पे support of numpy is 4/6. This is 3/6. So it came out to be 3/4, 0.75. दूसरा हमारा कौन सा रूल था, पाइथन एंड मैटप्लॉटलिब। इसका भी ऐसे निकालो, पाइथन एंड मैटप्लॉटलिब की सपोर्ट वैल्यू, सपोर्ट ऑफ पाइथन, पाइथन एंड मैटप्लॉटलिब, ठीक है, एंड सेम थिंग। अब हमारे पास हाई कॉन्फिडेंस, अब हमको ये हमने क्या कैलकुलेट किया, व्हाट इट इज, वी कैलकुलेटेड दी कॉन्फिडेंस। इसमें से सारी कॉन्फिडेंस की वैल्यू 0.5 से अबव है। अगर कोई ऐसा रूल होता जिसमें कॉन्फिडेंस की वैल्यू 0.5 या थ्रेशोल्ड से नीचे होती तो हम उस रूल को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास based on this what rules we have formed the rules python and numpy। क्या रूल बन गया, x टेंस टू y, एक रूल बन गया, पाइथन है तो नमपाई भी होगा, दूसरा रूल बन गया नमपाई है तो पाइथन भी होगा, तीसरा रूल ये बन गया 4, 5 and 6। so we have got 6 rules।
ठीक है, टू समराइज क्या कर रहे हैं हम सबसे पहले, सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। सपोर्ट की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ एक्स आइटम अपॉन टोटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, एक का निकालो, फिर 2 के कॉम्बिनेशंस, फिर 3 के कॉम्बिनेशंस। अब आपने 2 के कॉम्बिनेशंस निकाले, फिर आपने 3 के कॉम्बिनेशंस निकाले। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि 3 के केसेस में थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम आ रही है। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा आ रही है तो यू विल कंटिन्यू फॉर द फोर्थ। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा आ रही है फोर्थ में भी, तो यू विल कंटिन्यू फॉर द फिफ्थ। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम आना शुरू कर गई, यू विल स्टॉप। नेक्स्ट, जनरेट एसोसिएशन रूल्स। जहाँ जहाँ पे भी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस पे उसका क्या बना दोगे आप, रूल्स। एंड व्हाट यू विल कैलकुलेट, यू विल कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस। व्हाट आर द 2 थिंग्स, फर्स्ट इज द सपोर्ट वैल्यू, second is the confidence value. If confidence value is greater than the threshold, select those rules. ठीक है, so this is your a priori algorithm. I am repeating again, जितने भी आइटम्स हैं हर एक सिंगल आइटम का सपोर्ट वैल्यू निकालो, फिर उसके 2 के कॉम्बिनेशंस में सपोर्ट वैल्यू निकालो, फिर 3 के कॉम्बिनेशंस में, 4 के कॉम्बिनेशंस में एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर लो। यू कैन सेट एट इट एज 0.5, 0.7 भी कर सकते हो, 0.2 भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट इट हैज़ टू बी रीजनेबल। ठीक है, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे जितने भी कॉम्बिनेशंस है उसको आप डिलीट कर दो, प्रून कर दो, रिमूव कर दो। और फिर उसके बाद रूल्स बनाओ ऑफ द फॉर्म x डिराइव्स y, और हर रूल का कॉन्फिडेंस वैल्यू निकालो। ठीक है, जिस रूल की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है उस रूल को डिलीट कर दो, एंड देन यू विल गेट द सेट ऑफ रूल्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इट्स प्रोग्रामिंग पार्ट विल डू इट इन द लैब। ठीक है, इसको हम पाइथन से कैसे करेंगे, विल डू इट इन द लैब। सो दिस इज योर all of your unit number 4 association rule mining. So what we have learned today, I repeat again, what we have done transaction data set, we have done frequent item set, what is the support measure, हम rules कैसे generate कर रहे हैं। ठीक है, confidence हमने निकाला, confidence का formula, we studied a priori algorithm, a priori principle। ए प्रायोरी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी आइटम सेट का हमने उसको फ्रीक्वेंट बनाया है तो उसके सबसेट भी फ्रीक्वेंट होंगे। ठीक है, एंड देन वी स्टडीड ए प्रायोरी एल्गोरिथम। विद दिस योर यूनिट नंबर 4 इज कंप्लीटेड, राइट।